हेलो गाइस, तो वी हैव विद अस सार्थक एंड सार्थक। सार्थक को आपने लास्ट टू लास्ट वीडियो में देखा होगा एंड सार्थक को आप लोग अभी देख रहे हो। मेनली सार्थक इज द मेन गेस्ट हियर। Saarthak has arranged it for us. Thanks. Thank you to him. Love you. So you guys can just introduce yourself, both of you. As you might know, my name is Karthik. So, coming on to my experience, so why I'm here in this particular episode, we are talking about quantum as mentioned by Man. So, here our main discussion will be around quantum and how it is evolving. Like, what basically quantum is. We'll not be going in the technicalities. We'll be having a good overview of what quantum is, how it is working in the industry, how it is going to revolutionize the future, and what are the future possibilities of the same. So why I am here? I don't have a very big background in quantum, but yeah, I have done a research project with NYU Abu Dhabi, New York University Abu Dhabi, in detection of financial fraud using quantum graph neural networks. Yeah, that was one part of the thing that I did in quantum. I have studied a little. I have done some courses and stuff around that. And coming on to my education, that is a little controversial, but yeah, I had dropped out of first semester at Newton School of Technology. You guys might be knowing it's a new age tech school. I was in first semester of there in CSAI. I dropped out of that, and now I am in the university's program. It is business analytics in KPM. So I am doing that right now. But yeah, my full-time passion is building my business, Perseverance and Vision, where we are bridging the time it takes research to produce to reach to the masses. In India, that time is 38 years. We bridge it to 90 days. Let's suppose a very high impact research. Like let's take the example of quantum. क्वांटम में लाइक इफ वी डोंट गो टू द मतलब टॉप मोस्ट गूगल के ऊपर ना जाए, अगर हम एक नॉर्मल एक लेट्स सपोज आई एम एमआईटी. एमआईटी इज आल्सो टॉप नॉच. यू गाइस नो एमआईटी को कोई डाउट नहीं कर सकता. एमआईटी इज अ टॉप नॉच इंस्टीट्यूशन. वो क्वांटम में आजकल बहुत हाई इम्पैक्ट रिसर्च पेपर निकालते हैं एंड मेक श्योर दैट इज हाई इम्पैक्ट. लो इम्पैक्ट पेपर्स तो रीच ही नहीं करते ऑडियंसेस तक. हाई इम्पैक्ट रिसर्च पेपर की मतलब वो पूरी इंडस्ट्री को हिला सकता है, उतना इम्पैक्ट है उसमें. फॉर इट टू बिकम अ कॉमन नॉलेज कि आपको पता है, सार्थक को पता है, जो इंडस्ट्री पाइनियर्स नहीं है, हर दूसरे बंदे को पता है, टेक्स एटलीस्ट 38 years. दैट इज द मिनिमम टाइम. इट गोज टू अपवर्ड्स ऑफ 64 years एज वेल. अगर हम एनसीईआरटी की बात करें तो एनसीईआरटी आर अपडेटेड एवरी 64 years. तो वो टाइम गैप देखो. और कमिंग ऑन टू द पार्ट कि वो इंडस्ट्री को कब हिट करती है, इंडस्ट्री को जो लेटेस्ट रिसर्च है वो 8 से 10 साल में हिट करती है. तो इवन आफ्टर दैट रिसर्च इज इन इंडस्ट्री फॉर 20+ years, तब भी वो हमारी बुक्स में आती नहीं है. इतना बड़ा नॉलेज गैप है जिसको वी आर ब्रिजिंग. ओके, तो ये नंबर वाला डिफरेंस तो भाई मेरे को नहीं पता था. ऑफ इट टेक्स 38. आई वाज डेफिनेटली अवेयर कि देर इज अ बिग गैप बिटवीन रिसर्च Yeah. एंड actually having it be implemented somewhere, but 38 to Yeah. 64 years is just wild. 38 इज मिनिमम. लाइक हम बैचलर्स मास्टर्स लेवल पे जाते हैं, 38 years का टाइम गैप परसिस्ट करता है. बट इफ वी गो टुवर्ड्स पीएचडी, तो इट कम्स टू अराउंड 12 or 14 years. तो इवन एट पीएचडी लेवल भी वो 14 years के आसपास है. इवन इन यूएस, इंडिया में इट्स मिनिमम 38 years. In which it's around 12 to 14 years. In some European countries, the minimum that we go is around 8 years. तो जब तक वो इंडस्ट्री को टच करता है, तब तक वो बुक्स में जाता है. दैट इज ऑल्सो एट सम पॉइंट ओके, ठीक है, इंडस्ट्री में हिट हो गया, आपको पता तो चल रहा है इंडस्ट्री में क्या चल रहा है. बट इन इंडिया, इंडस्ट्री में ऑब्सोल्यूट जब हो जाती हैं चीजें, व्हेन इट गोज आउट ऑफ इंडस्ट्री, तब जाके वो बुक्स में आ रहा है. इट इज ऑफ नो यूज. फायदा क्या, आप क्यों बच्चों को पढ़ा रहे हो वो चीज जब कोई फायदा ही नहीं है उसका. सही बात है. So This is that a is the topic I problem that keep we are. ranting about, and now I have just one more data point to talk about. ये तो मैं बहुत रिपीट करने वाला हूँ हर जगह. तो I sounds can good. give you multiple data points. Like इंडिया में हर साल 1,60,000 पेटेंट्स आते हैं जो फाइल होते हैं, ग्रांट हो जाते हैं, गवर्नमेंट अप्रूव कर देती है इन द डेटाबेस. बट आउट ऑफ दैट हाउ मेनी आर बीइंग कंज्यूम्ड एट द इंडस्ट्री लेवल? जस्ट फॉर एनी एस्टिमेट्स इन परसेंटेज कि इंडस्ट्री में उनका कितना कंजम्पशन है? So I said like 10%, 10-15%. इट्स 0.01%. नॉट इवन वन, इट्स 0.01%. Okay, that is just the एंड epitome of या anti-innovation. exactly. And the reality is, it was a report by Statista, you might be knowing. In India itself, every 2 years, 80,000 crore rupees are lost just because right patented solutions नहीं मिल रहे. पेटेंट हो रखा है, सोल्यूशन एग्जिस्ट करता है, बट सही टाइम पे वो मिल ही नहीं पा रहा. रीजन, plethora of data is there, a lot of data is there. How will you find what is the right solution for you?
That is another thing that we are solving, and we are soon Mhm. launching into that space as well. I That is see. also a new product which is coming Very soon. Like we interesting. have, ये like we pitched it like in a past event. So we had like a event at like a university, a government university in Haryana. So we pitched it there also. So that was the first time we had a teaser of it. Yeah, me and Sarthak was there also. Yeah. So there we pitched it first time, and like many Yeah. people liked it a lot. Like literally, they Yeah, a wanted to lot use of it. people who had patents, they were very curious because patent commercialization is a very big issue. ओके Researchers patents करा देते हैं just for the sake of getting the doctor tag या कोई specific assignments पूरे करने के लिए patents फाइल हो गए. Even though they are good, they are quality patents, but यूज ही नहीं हो रहे. फायदा क्या? तुमने पेटेंट करके तुम भूल गए. बट जिस इंडस्ट्री को उसकी जरूरत है आज से 20-25 साल 30 साल बाद इन लाइसेंस, यू माइट बी नोइंग कि पेटेंट्स पब्लिक नॉलेज हो जाते हैं रेंजिंग फ्रॉम 20 years to 30 years राइट अलग अलग डोमेन्स में. तो जो मिनिमम होता है वो 20 years, तो 20 साल बाद वो पब्लिक नॉलेज है, कोई भी यूज कर सकता है, नो रॉयल्टी नथिंग. मैक्सिमम इट गोज टू 30 years. तो 20-30 साल बाद तो वैसी पब्लिक नॉलेज है, कोई भी यूज कर लेगा. बट द थिंग इज कि उसकी नीड ही अभी है, प्रेजेंट में नीड है उसकी, तो हाउ विल यू यूज इट? इंडस्ट्री अगर वो खुद उसे रेप्लिकेट करने जाएगी, इट विल कॉस्ट देम मिनिमम 1000 times. आप एक प्रोफेसर हो, आपने यूनिवर्सिटी लेवल पे जो रिसर्च प्रोड्यूस करी है, इंडस्ट्री लेवल पे जब उसे प्रोड्यूस करना पड़ता है, इट कॉस्ट 1000 times. आपको बहुत सारे रेगुलेशंस फॉलो करने पड़ते हैं, एक मास वो चाहिए, आपको वर्कफोर्स चाहिए, आपको बहुत सारे टेक्निकल इक्विपमेंट चाहिए, गवर्नमेंट रेगुलेटरीज आपको फॉलो करनी पड़ती है, बहुत सारे इश्यूज आते हैं जो आप एज अ ऑर्गेनाइजेशन अवॉइड करना चाहोगे. आप चाहोगे यार ठीक है, मैं उसका 10% पे करके जब खुशी खुशी वो रिसर्च ले सकता हूँ, देन व्हाई वुडंट आई? एंड ऑन द अदर हैंड उस रिसर्चर को जिसने एक्चुअल मेहनत करी, उसको उसकी फेयर वैल्यू मिलती है. राइट इंडिया में रिसर्चर्स गरीब रह जाते हैं इस वजह से क्योंकि कमर्शियलाइज नहीं कर पा रहे अपनी रिसर्च को. दैट्स व्हाट वी आर ट्राइंग टू सॉल्व ऑन दैट लेवल एज वेल. ठीक है लेट्स लेट्स कवर ऑल ऑफ दिस अभी ये वाले सार्थक का इंट्रोडक्शन बचा है फॉर दिस वीडियो हाँ, श्योर श्योर. Yeah. Like we all got into like the topic only. So as you know, like I met you guys last video. So I'm a designer from my background and working in different edtech fields right now. So like my major initiative is to like grow like skills only in the people. So working for like many different companies in the past, and right now also working for two major firms and working with Sarthak also in operating in North India. So yeah, Sarthak and me are working on this part for specifically research-based students. Yeah, I think that's enough. ठीक है अ, अभी लेट्स गेट स्ट्रेट इनसाइड एकदम टॉपिक निकालते हैं बट श्योर. पूरा टॉपिक में जाने से पहले इट साउंड्स वेरी इंटरेस्टिंग व्हाट यू हैव डन सो सार्थक यू फर्स्ट वेंट टू अ न्यू एज टेक कॉलेज एंड यू And ड्रॉप्ड I'll आउट also इन share द you another fact also. I was the second one. मैंने January 26 January को I paid the token fees to block the seat. I was the second guy to take admission in that cohort. That was the second cohort of NST, Newton School of Technology. I was the second guy to take the admission and the highest scholarship of the batch. सो And I लाइक was one of the least worst performers when the result came of first semester. तो उससे पहले ही मैं ड्रॉप कर चुका था. मैंने क्लासेस ही मिस कर दी, मैंने पेपर नहीं दिए, मैंने सब कुछ खत्म कर दिया था. I also wrote a LinkedIn post about that as well recently. LinkedIn पे also I'm a little active, तो मैं LinkedIn पे काफी कुछ डालता रहता हूँ. तो वहाँ पे also इज देयर एनी रीजन यू ड्रॉप्ड आउट कि yeah, see, NST is a very good platform if you only want to study. ओके If you are really willing to get into coding, if you are willing to explore the world of tech, that's a really good place, no doubt. You will learn coding from first day, no pun. But the thing is, कि यार, I am already stuck in a lot of things. I have a full-time business to run, and the business itself takes so much time and effort कि मेरे पास और कुछ करने के लिए बचता है. मेरी attendance short, बिकॉज मैं आधे टाइम दूसरे कॉलेज में विजिट पे जा रहा हूँ, कभी गेस्ट लेक्चर देना है, कभी किसी से बात करनी है. ऑल्सो एट टाइम्स हैव टू गिव गेस्ट लेक्चर टू टेल स्टूडेंट्स द वैल्यू ऑफ रिसर्च. So in that case, 75% attendance was non-negotiable to them. Passing marks non-negotiable, and I really respect them for that. ठीक है. So at the end, it was like, yeah, I can't really continue like that. क्लियर का टैग ठीक है, ले लेंगे, 10 बार लेंगे, 20 बार लेंगे, 50 बार लेंगे. आई एम नॉट स्केर्ड ऑफ दैट. बट फीस काफी है. इवन आफ्टर स्कॉलरशिप इट इज अ कंसिडरेबल अमाउंट. राइट तो आई रियलाइज कि ठीक है, मैं बहुत वेल्दी बैकग्राउंड से नहीं आता, तो आई रियलाइज कि ठीक है, इट्स बेटर दैट आई स्विच. कुछ ऐसा करता हूँ जो हाँ डिग्री पूरी भी कर पाऊँ, इसमें छोड़ना ना पड़े. राइट बिकॉज मैंने जब यूनिवर्सिटी से बात करी, मेरी ऋषिवड यूनिवर्सिटी में, उनसे जब मैंने बात करी तो दे वर लाइक कि ठीक है, यू कांट रियली डू अ लॉट इन बीटेक बिकॉज बीटेक इज हेक्टिक.
At times there were days जब मेरी क्लासेस सुबह 9 बजे से स्टार्ट हो रही थी and they were ending at 11 in the night. लंच ब्रेक था, स्नैक ब्रेक था, सब कुछ था. बट स्टिल इट इज वेरी हेक्टिक, कुछ बचा ही नहीं मेरे पास. एंड 11 बजे कैंपस लॉक हो जाता है, 11 साढ़े 11 कैंपस लॉक, यू हैव टू स्टे इन द रूम. हम्म. एंड इट्स वेरी वेल नोन कि आधे टाइम हॉस्टल के वाईफाई नहीं चलते. राइट. तो क्या करें फिर रूम पे जाके, यू हैव टू इवेंचुअली स्लीप, सुबह उठना भी है. I see. So, मतलब you were stuck in this कि यार this is great, but I want to do more, and this is Exactly. just for like a certain kind of person. That's not me. And then I also realized कि maybe coding is not my core passion, business is. So Oh, मतलब यहाँ मैं डिमोटिवेट नहीं कर रहा कोडिंग वालों नहीं को, नहीं बट नहीं. आई personally felt that कि I personally resonate more towards the business side. I like solving real world problems. And हाँ, टेक के बिना हमारा भी काम नहीं हो सकता. We also have to use a lot of tech in our products. हम्म. Backend में हम कहीं ना कहीं AI भी यूज करते हैं. A lot of stuff. आई गेस अभी कोडिंग बहुत ही ज्यादा रिडंडेंट हो गया है, जबकि वो Exactly. उल्टे डायरेक्शन में जाना चाहिए. सिंस what I have seen personally, I am like very much core into coding. In fact, मैं I do it for fun. मैं रात को 2 बजे बैठ के कोड करता हूँ. I have so what I have noticed is कि चीजें इतनी ज्यादा easy हो गई हैं कि it becomes so much more fun, and all the institutes, all the corporations are just straight up ignoring it. हम्म. So, वही uh, तो, that is an issue. मतलब when you are introducing coding to someone for the first time, you have to make sure that is interesting. हाँ. बट मेरा वो कभी इंटरेस्ट बना ही नहीं. मेरे साथ वो इशू हो गया स्टार्टिंग से. इट वाज नेवर अ थिंग जो मैं कभी प्रायोरिटाइज कर पाया. मैथ्स मेरी ठीक है, चल गया जितना हो गया, ठीक है. आई समहाउ एस्केप मैथ्स. बट एक साथ साइमल्टेनियसली 4 लैंग्वेजेस चल रही है, पाइथन, एचटीएमएल, सीएसएस, तो इज अ डिफरेंट थिंग. वो ठीक हम्म. है. साथ में जावास्क्रिप्ट भी स्टार्ट हो गई, तो वो प्रेशर जब बंदे के ऊपर बनता है ना, तो यू रियली कांट टेक इट लॉन्ग. हाँ तो मेरे को हाँ. पता है कि मेरा एक्चुअल प्रायोरिटी कुछ और है. आई नो माय प्रायोरिटीज आर डिफरेंट. आई रियली डोंट वांट टू गेट अ जॉब इवन आफ्टर 4 years. हम्म. So I want my business to stand somewhere, so that's what I chose. हाँ, तो मतलब आई गेस यू हैड इट क्लियर कि Yeah, नाउ आई हैव रियलाइज, मैंने थोड़ा सा करके देखा एंड दिस इज नॉट फॉर मी. सो सी यू peace देन, out. बाय बाय, टाटा. Bye bye. Indeed. बट यार ये करने में भी इट टेक्स अ लॉट ऑफ, मतलब जा रहा हूँ I भाई, know कि कॉलेज छोड़ मतलब के जा रहा पेरेंट्स पेरेंट्स को मनाना was the biggest issue. हूँ. हाँ. Because for my father, मतलब I personally talking, my father is the person जो खुद स्टेम लेना चाहता था अपने टाइम पे, बट नहीं ले पाया बिकॉज फैमिली रिसोर्सेज नहीं थे. किसी ने तो हम्म. उनको ये बोला कि यार साइंस वालों की ट्यूशन महंगी होती है, सब कुछ होता है. तो ही वॉज दैट पर्सन कि हाँ, मेरे बच्चे स्टेम से ही होने चाहिए. हम्म. मेरी बहन इज अ फार्मासिस्ट. अब शी इज अनदर केस. शी इज अ फार्मासिस्ट who has then done her masters in AI. Now she is a healthcare analyst in consulting. ओके. हाँ, तो तो कंपैरिजन हो जाता है फिर. इसने ये किया, तू भी हाँ, थोड़ा तो कर. तो her education level is here and mine is here. शुरू से ही I was not the brightest in studies. But पता नहीं research side how did it work? Because for everyone research is like epitome of academia. Toppers only go in research. हम्म. Be it. How did you convince your parents यार? This I'm interested in knowing. This is a, I think Sure. सबको सुनना होगा ये तो. ये कैसे किया, मतलब how do you? See, मतलब मेरे पेरेंट्स को ना, मेरी मदर को स्पेसिफिकली कॉल आया मेरे को फाउंडर का कि लाइक ये कर तो रहा है बट इससे होगा नहीं. ब्रूटली ऑनेस्ट, इससे होगा नहीं. Okay. और मुझे भी नहीं पता उसने मेरी मम्मी का नंबर कहाँ से, बिकॉज ऑन पेपर माई मदर इज द पर्सन हु ओन्स द कंपनी. मैं 18 Okay. का नहीं था जब व्हेन वी स्टार्टेड द फर्म, तो मदर के नाम पे मैंने कर रखा है. तो Okay. आई टर्न 18 ऑन 26. टुडे इज 28. तो 2 दिन हो गए. आई एम 18 प्लस नाउ. Oh wait, wow. Okay. ये तो मेरे को पता ही नहीं था भाई. That's very impressive. तो या, तो अब जब उसका फोन आया तो मम्मी को रियलाइज हो चुका था पहले से, बिकॉज मैंने बातों बातों में उनको ये बात बोली थी कि हो नहीं रहा है, छोड़ दूं क्या. बट क्लियर नहीं बोल पाया था बिकॉज ऑब्वियसली इट्स ऑब्वियस थिंग कि इतना ओपन नहीं हो पाते पेरेंट्स इतनी जल्दी. उसका हम्म. फोन आया एंड मम्मी ने कहा ठीक है मैं बात करती हूँ. मम्मी आई, उन्होंने मेरे को बोला कि ठीक है, आई ट्रस्ट यू कि तू कुछ ना कुछ तो कर लेगा. दे आर नॉट हम्म. डाउटफुल अबाउट माई फ्यूचर बिकॉज दे नो जितना मैं करता हूँ ऑलरेडी. मैं अपनी
ईयर से तो एटलीस्ट 4-5 साल आगे हूँ, बीट इन Right, टर्म्स right. ऑफ वर्क एक्सपीरियंस। 18 साल की एज में अराउंड 2 years ऑफ वर्क एक्सपीरियंस। Hmm. तो व्हेन आई टर्न 22 आई एटलीस्ट हैव 6। तो Hmm. जो 22 साल में व्हेन एवरीवन हैज 0 आई हैव 6 years, तो दैट मैटर्स। एंड उन्होंने देखा है व्हेन आई वर्क 16 आवर्स अ डे, दे हैव सीन हाउ आई गो क्रेजी विद वर्क, तो उनको उस बात पे डाउट नहीं था। बट जब मेरे फादर की बात है, जब फादर को बोला तो ही वाज रियली डिसअपॉइंटेड। उनका यकीन था कि नहीं स्कैम में था, ये वो। वाज लाइक कि ही डिडंट रिवोल्ट बट ही वाज डिसअपॉइंटेड। ही वाज लाइक यार क्यों नहीं कर रहा तू, नंबर नहीं आ रहे, नंबर चाहिए ही नहीं तो बस कर ले, इनका वेस्ट क्यों करूँ मैं। आई डोंट रियली वांट टू डू दैट वेस्टेज। फायदा नहीं है इतना मेंटल प्रेशर बिल्डअप होगा, क्योंकि कहने की बात है नंबर मैटर नहीं करते, बट एट द एंड ऑफ द डे समहाउ नंबर्स आल्सो मैटर। जब मैं अपना Hmm. रिपोर्ट कार्ड देखूंगा कि पूरे साल यार मैंने घिसी है, मैं पूरे साल क्लासेस भी लगाई, 75 जैसे तैसे मेंटेन करी, एंड एट द एंड इतने नंबर आए तो फेल आने आती है। दैट आल्सो इज अ थिंग दैट पुशेस यू डाउन। उस पॉइंट पे वो लोग यूनिवर्सिटी आए मेरे से एक दिन स्पेशल मिलने। मैं सोनीपत रहता हूँ अभी, तो जैसे घर आ रखा हूँ मतलब छुट्टियों में। वो स्पेशल मेरे से मिलने आए कि देख ले फाइनल है, पक्का है, करना है, ये है वो है। अब फाइनल है, अब जो है फाइनल है, और कुछ नहीं। तो इट वाज लाइक बहुत पक्के मन से वी हैड टू। एंड यूनिवर्सिटी में भी इंटरनली बहुत सारी चीजें छेड़ी मैंने। तो यूनिवर्सिटी सीईओ से लेकर जो टॉप के जितने लोग हैं सबको बाय माउथ मेरा नाम पता है, बाय फेस मेरे को जानते हैं, बाय नेम उनको पता है सार्थक कौन है। मैंने सबसे बात कर ली कि मेरे को चेंज करना बताओ, मेरे को चेंज करना बताओ, करूँ ना करूँ, करूँ ना करूँ। Hmm. तो बेसिकली गाइस द सिंपल फॉर्मूला, अगर आपको भी करना है ड्रॉप, तो एक सब्जेक्ट उठाओ, बिकम ऑब्सेस्ड विद इट, वर्क विद इट फॉर 16 to 18 आवर्स अ डे, एंड डू इट दिस फॉर 2 or 3 years। अगर ये आपसे हो पा रहा है तो कर लो फिर ड्रॉप। दैट्स द फॉर्मूला। पेरेंट्स का ट्रस्ट होना जरूरी है। मतलब मैंने कभी कुछ ऐसा नहीं करा कि पेरेंट्स का ट्रस्ट ब्रीच हो या ब्रेक हो। हम्म। अब ऐसे नंबर बुरे आए, कभी उल्टी सीधी हरकतें नहीं करी कि उनको लगे कि यार कभी कि लड़का गलत साइड। उनको ये पता है कि जो मैं कर रहा हूँ इट्स नॉट रॉन्ग। बट आज भी जैसे स्टिल इवन मैंने डिग्री स्विच करी, आई वेंट फॉर लाइटर कोर्स, थिंग इज दिस स्टिल नो कि मैं वो नहीं करने वाला। बस पास्ट जब से मैं घर आया हूँ 18 आवर्स अ डे, मेरा यूजुअल 50 होता है, यहाँ के 18 हो गया बिकॉज ऑफ अ लॉट ऑफ चेंजेस इंटरनली। हमें फंडिंग ऑफर आए, उसकी वजह से बहुत सारे इंटरनल, हमें अभी रिसेंटली $1 million फंडिंग ऑफर आया दैट वी आर गोइंग टू रिजेक्ट, टू बी ऑनेस्ट। बट या वी हैव टू प्रिपेयर फॉर दैट। तो वीसीज के साथ मीटिंग करना, वी हैव टू सिट विद वीसीज। वही ऑन द अदर हैंड माय ओन यूनिवर्सिटी इज अ लिटिल इंटरेस्टेड टू हेल्प अस आउट, हेल्प अस इन हम्म। incubate and do stuff. तो वी हैव टू। एंड आई टेल यू अनदर स्टोरी। एक टाइम था यूनिवर्सिटी में, जब स्टार्ट हुआ था, लाइक एक महीना हो गया था, एंड वी साइंड ऑफ आवर फर्स्ट इंटरनेशनल क्लाइंट, यूएस का एक्सपोर्ट था। हम्म। तो वहां पे लगभग हमारे टाइम का लगभग 2 बजे उनको जोश चढ़ता था कि वी हैव टू हैव अ मीटिंग। हम्म। एक हफ्ता डेली रात को 2 बजे मीटिंग स्टार्ट होती थी, और लगभग 1.5 से 2 घंटा चलती थी। ठीक है, मतलब सुबह के 4 बज गए, हम्म। 2 घंटा मीटिंग चली। एंड उस मीटिंग को प्रिपेयर करने के लिए हमें आधे से 1 घंटे के लिए कंटेंट पहले लाना है, जो भी चीजें उनको देनी है, उनके क्वेश्चंस के क्वेरीज के आंसर करने, 1 घंटे की प्रिपरेशन लगती थी। 4 बजे मीटिंग खत्म होती है, आधा घंटा जो चीजें लगा के लाइटिंग वगैरह लगा के बैठा हूँ वो वाइंड अप करनी है। 4:30 इफ आई गो टू बेड, माई क्लास स्टार्ट एट 9, मेरे को ब्रेकफास्ट करना है तो 8 बजे उठना पड़ेगा, नहाना है तो 7:30 उठना पड़ेगा। तो एक साइकिल तो एग्जिस्ट ही नहीं करता था एक पॉइंट पे। एंड फिर क्लासेस मेरी खत्म होती थी 5 बजे, एक हम्म। घंटे का वो होता था, उसका कंपलसरी स्पोर्ट्स है, राइट। वहां भी जाना है। तो वो खत्म हो चुका था अंदर से कि भाई वी हैव टू डू इट फॉर अ वीकेंड। एक भी दिन का कोई ऐसा नहीं कि स्किप करो, पूरा टाइम वी हैव टू डू इट, कोई ऑप्शन ही नहीं है। मैंने चूज करा कि मुझे करना ही पड़ेगा, नो ऑप्शन। अगर आपके अंदर वो वाली है ना कि यू हैव टू टेक दैट लेवल ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, यू कैन गो फॉर इट, कोई नहीं कुछ कह सकता, गो फॉर इट। आई गेस एक वो सोसाइटल प्रेशर रहता है विच हैज बीन डिस्कस्ड ओवर एंड ओवर अगेन कि यस यू कैन डू इट विदाउट कॉलेज, बट व्हाट इफ यू हैड अ कॉलेज डिग्री एज वेल। ये तो एग्जैक्टली। हमेशा चालू ही रहता है लोगों का। ये तो लोग अभी निखिल कामत को भी बोलते होंगे, डिग्री होती तो और भी बेटर होता भाई ऐसे। सो दैट इज वन थिंग। अभी लेट्स गो मोर इन डेप्थ, क्वांटम कंप्यूटिंग का चालू करते हैं। श्योर। सो
first of all, tell me, how did you get into quantum computing? How did you like start? How did you find the topic? हाँ क्योंकि मेरे को 2 साल पहले पता चला, and since then मैं बस अरे मस्त है, but I just understand the very top of it कि ठीक ठाक कैसे काम करता है, but I never हाँ really went into depth because of the maths that is हाँ involved. हाँ sure. तो द थिंग इज कि कमिंग ऑन टू मेरे को क्वांटम कैसे पता चला, बीइंग ब्रूटली ऑनेस्ट मुझे भी 100% याद नहीं कि पहली बार मैंने क्वांटम कंप्यूटिंग वर्ड कहाँ देखा, बट आई कैन रिमेम्बर कि शायद फैक्टर्स का या कुछ तो ऐसे वीडियोस आते थे उस टाइम पे, हम्म जब व्हेन आई वाज इन 10th खत्म हो रही थी 11th स्टार्ट हो रही थी, तो उस टाइम पे आई वाज इन द स्टेट कि यार मेरे को या तो पायलट बनना है या तो मेरे को रिसर्च करनी है क्वांटम कंप्यूटिंग पे। मैं वाह, यूट्यूब पे क्या वीडियोस, ये क्या, ये तो बहुत ज्यादा बिकॉज डाइवर्स हो गया भाई. हाँ हाँ, तो आई एक्सप्लेन यू द रीजंस बिहाइंड बोथ एज वेल, बट पहले कि क्वांटम कंप्यूटिंग मैंने फैक्टर्स की कोई तो वीडियो में देखा कि एक कंप्यूटर है जो अभी आया भी नहीं है मार्केट में, ठीक है, हम्म और वो कुछ तो अलग टाइप की फिजिक्स पे चलता है, एंड वो ना मतलब बहुत अलग लेवल की कैलकुलेशन कर सकता है बहुत जल्दी, जो आज की कंप्यूटर्स को मिलियंस ऑफ ईयर्स लगेंगे। हम्म. जो बेसिक लाइन हर किसी को क्वांटम के बारे में पता है, मुझे वो पता एग्जैक्टली. चली। फिर मैंने यूट्यूब पे और देखा, आई गॉट इंटरेस्टेड, और दो तीन यूट्यूब चैनल्स हैं वो देखे एंड आई गॉट इंटरेस्टेड। तो मेरे एक मामा है दूर के, तो ही इज अ रिसर्चर, ही इज अ मेडिकल रिसर्चर, ही इज इन स्टेम, डायबिटिक मेडिसिन पे रिसर्च करते हैं। तो आई वाज टॉकिंग टू हिम, एंड अगर मैं पायलट की बात करूँ कि व्हाई आई चूज पायलट, पायलट इज अ करियर जो बहुत पैसा देता है। ओके, फेयर. पैसा. आई एम अ गाय हु लव्स मनी। मैं रिसर्च में भी क्यों गया, बिकॉज मेरे को उस बंदे से बात, जो मेरे मामा है दूर के, उनसे बात करके पता चला कि रिसर्च इज अ वेरी वेल पेइंग करियर, नॉट इन इंडिया, आउटसाइड। एंड क्वांटम कंप्यूटिंग की रिसर्च इंडिया में आज भी नहीं हो रही ढंग से। दैट इज अ, करेक्ट. क्या इंडियन करेक्ट. गवर्नमेंट ने जितना मर्जी करोड़ का फंड लॉन्च करा, इंडिया में भी कुछ सीरियस लेवल का नहीं हो रहा। What I've been working on in the past few days, wanted to ask you about that. So, अभी जैसे क्वांटम कंप्यूटिंग का एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है कि इंडिया में नो प्रॉपर रिसर्च इज बीइंग डन. इनफैक्ट आई गेस मेजॉरिटी ऑफ द रिसर्च इज जस्ट बीइंग डन बाय IBM एंड गूगल. इंडीड। So what I saw was in terms of AI has become very matured from what it was. मतलब या quantum मेन स्ट्रीम। computing जहाँ पहुंचा है, quantum computing is still on a very nascent phase, but AI has now just broken into mainstream, and yet I did a lot of research, but the only model that is trained from scratch in India is a 1.5 billion parameter model of a certain company that has a $1 billion valuation, is what I've heard. And that is the only model they have, which is so astonishing to me. And I have talked to a few people about this, and what they say is OpenAI बना तो रहा है LLM, तो हम क्यों बनाए LLM? And I'm like, bro, दैट that's इज not वेरी the point. एग्जैक्टली। The point is research. So, मतलब, what do you think? What is the barrier there in हाँ, terms of सो research? मतलब अगर मैं क्वांटम और एआई की ग्रोथ को कंपेयर करूँ, देयर आर टू मेन फैक्टर्स कि क्वांटम उस रेट से क्यों ग्रो नहीं कर पाया। Hmm. और कमिंग ऑन टू द पार्ट कि दोनों का इंसेप्शन कब हुआ इन टर्म्स ऑफ रिसर्च, तो क्वांटम कंप्यूटिंग जो कॉइन करा टर्म, दैट वाज कॉइन्ड बाय रिचर्ड फेमन, इज द फादर ऑफ क्वांटम फिजिक्स एंड क्वांटम कंप्यूटर्स। उन्हीं Hmm. के उस पे मतलब आई फॉरगॉट द नेम ऑफ द यूनिवर्सिटी, बट इट इज द बेस्ट यूनिवर्सिटी इन टर्म्स ऑफ रिसर्च, इट्स नॉट MIT और स्टैनफोर्ड। यू कैन गूगल इट अप, यू विल गेट द नेम। रिचर्ड फेमन के उस पे कौन सी यूनिवर्सिटी है पूरी, इट्स इन यूएस ऑब्वियसली। So it was in 1960s, but AI came in picture later, and why AI evolved faster? क्योंकि AI को अलग से इंफ्रा नहीं लगता। AI is Correct. on your simple computers. AI Hmm. started obviously, अब उसको और इंटेंसिफाई करके हमें स्पेसिफिक चिप्स और GPUs लगते हैं, बट AI started with normal infra itself. उसको Hmm. स्पेसिफिक टेम्परेचर्स नहीं। क्वांटम की बात करूँ, इट रिक्वायर्स फ्रीजिंग टेम्परेचर्स, Hmm. इवन टेम्परेचर्स, मतलब और ठंड आउटर स्पेस में टेम्परेचर्स जो है ना माइनस में होते हैं। Even below the outer space temperature, we have to go to maintain a quantum computer on a functional level. Right. रूम टेम्परेचर पे तो मतलब ही नहीं है कि वो चल सकता है। Hmm. ऑब्वियसली आई डोंट सी क्वांटम्स अडॉप्शन ऑन अ ह्यूमन स्केल, मतलब हर दूसरे घर में क्वांटम कंप्यूटर नहीं आने वाला, बीइंग ब्रूटली ऑनेस्ट। Right. इसका यूज ही नहीं है। क्वांटम Hmm. इज नॉट अ थिंग जो आप ब्राउजिंग कर सको उस पे, इट इज अ थिंग जहाँ पे आप बहुत सीरियस लेवल की कैलकुलेशंस कर सको। आई सी इट एज अ सब्स्टिट्यूट, इवन नॉट अ प्योर रिप्लेसमेंट, अ सब्स्टिट्यूट टू सुपर कंप्यूटर्स। Okay. अगेन दैट इज अ इंडस्ट्री लेवल थिंग, वो हमारे घर पे तो आते Hmm. नहीं सुपर कंप्यूटर।
Supercomputers again is a collection of a lot of strong, powerful computers. पता होगा लोगों को. हम्म. तो क्वांटम फॉर मी इज दैट. बट अगेन कि ये ग्रो क्यों नहीं कर पाया, पहली चीज इसके लिए इंफ्रा बहुत चाहिए. दूसरी चीज क्वांटम फिजिक्स अपने आप में इतनी ज्यादा वेल रिसर्च नहीं है. थ्योरीज राइट. बहुत है क्वांटम फिजिक्स में, बट उसके अगेंस्ट सॉलिड रिसर्च नहीं है. तो ट्रू. उसको डेवलप करने में बहुत टाइम लगा. एंड आई एक्सपेक्ट आने वाले 8 से 10 साल इज अ थिंग जहाँ पे क्वांटम का लैंडस्केप पूरी तरीके से चेंज होने वाला है. रीजन भी गूगल एंड IBM आर लीडिंग इट एंड इट इज बाउंड टू चेंज. Willow in itself is a big stepping stone if you know about Willow. Yeah. I wanted to ask about that also. Yeah. But let's carry this on what you were talking about. So मतलब यार यही टॉपिक के बारे में अब जैसे क्वांटम के लिए you do require infra, that is fair. But जैसे what I was asking was from a research perspective, अगर कोई Hmm. कंपनी को तुम $1 billion वैल्यूएशन दे रहे हो, ओके ऑफ कोर्स देयर आर अदर मॉडल्स जो फाइन ट्यून करके चल रहे हैं इंडिया में, बट ये वाला जो स्पेसिफिक चीज है ऑफ रिसर्चिंग अबाउट एन LLM ऑन योर ओन, creating your own models, creating your own mathematical models, and releasing your own LLM by training it. If if Meta can do it, if Microsoft can do it, why can't the Indian top companies do that as well? क्योंकि if Here is another data for that. I'm a man of data. I always speak with data. India का जो data है that is not owned by Indians. All the data that is produced by Indians are owned by Google and all Microsoft. जो भी बड़े unicorns, multi-trillion-dollar companies हैं in US. When an Indian multi-billion-dollar company as well has to build something, they have to buy that data जो उस Google ने, let's suppose I am not here to defame any company, but let's suppose Google ने वो data Indian youth से collect करा है. To buy that data back, I'll have to pay 4 or 5 times more the price. I हमारा ही डेटा see. हमें वापस लेने में 5 गुना प्राइस देना पड़ेगा. एंड फॉर अ कंपनी जो अभी प्रेजेंट पे फोकस कर रही है, इट डजंट रियली मेक अ लॉट ऑफ सेंस टू इन्वेस्ट इन R&D. ऑब्वियसली अ कंपनी लाइक गूगल जिसके पास बहुत सरप्लस कैश है, इवन एट $1 billion वैल्यूएशन, कंपनीज के पास कैश बहुत ज्यादा नहीं होता. 100-200 करोड़ इज नॉट अ वेरी बिग अमाउंट ऑफ कैश. हम्म. दे आर वेरी फोकस कि R&D में सिर्फ 2%, 5%, 10% इज द बिगेस्ट यू कैन गो करेक्ट. इन टर्म्स ऑफ कॉर्पोरेट्स. तो 10 करोड़, 20 करोड़ रुपए कोई बहुत बड़ा अमाउंट नहीं है. अब डाटा खरीदने जाओगे वही 3-4 करोड़ का आ जाएगा. अब वर्क फोर्स लेने जाओ, इंफ्रा उसके लिए फिर सेटअप करो. यू नीड हाई एंड GPUs नाउअडेज. एक आई टेल यू अनदर थिंग. अभी हम जब अपना AI मॉडल ट्रेन कर रहे थे तो हमें क्रेडिट्स नहीं मिले. अब तो नाउ वी आर बैक्ड बाय माइक्रोसॉफ्ट. तो उससे पहले व्हेन वी वर ट्राइंग टू ट्रेन इट आवरसेल्व्स, एक GPU का मतलब जो रेंटल कॉस्ट था पर आवर इट वाज ओवर 50,000. How राइट. will हाँ. a normal how will a normal startup who is trying to हम्म. do something in AI will be able to pay 50,000 और उसका ट्रेनिंग टाइम was over 250 hours. राइट. तो कैसे अफोर्ड, मतलब आप अगर एक पॉइंट पे ज्यादा GPUs दे दोगे तो भी आपका पर आवर कॉस्ट बढ़ जाएगा, ट्रेनिंग टाइम कम हो जाएगा. बट अगेन दैट वोंट रियली मेक अ लॉट ऑफ फाइनेंशियल सेंस. दैट इज सो अनदर इशू कि जो बड़ी कंपनीज के लेवल पे भी आता है कि उनको इंस्टेंट रिटर्न्स नहीं दिखते. कुछ लोगों को जो लेगेसी कंपनीज है उनको ये लगता है कि AI एक नया ट्रेंड है, आएगा और जाएगा. बट दैट इज नॉट इवन ट्रू. वहां पे इनोवेशन की भी कमी है. जो टॉप लीडरशिप है ना, लेगेसी कंपनीज क्यों लेगेसी बन के फेल होती हैं? क्योंकि उनका जो लीडरशिप है ना, प्रोन दैट इज वेरी स्केयर्ड ऑफ इनोवेशन. वो इनोवेट करना ही नहीं चाहते. वो कहते हैं जैसा चल रहा है चलने दो. राइट. दैट इज अनदर इशू. So I guess it's like a combination of factors, and one of the major one being कि इससे पैसा कैसे बनाए. ऐसा कैसे कैसे बनाए, और डेटा ही नहीं है. इंडियन कंपनीज का हाँ. अपना डेटा ही नहीं है. तो दे राइट. हैव राइट. टू अगेन थिंक कि डेटा अक्वायर करूंगा, उसका कॉस्ट आएगा, कॉम्प्लिकेटेड है, छोड़ो. I think डेटा क्यों नहीं है, because at some point some people would have thought कि डेटा का क्या फायदा है, वो तो मेरे को 15 साल एग्जैक्टली. आगे काम में आएगा. अब वो सोच रहे हैं AI का क्या, मैं AI तो मेरे को वो बना रहे हैं ना, वो सैम ऑल्टमैन बना रहा है, ठीक है मैं तो बैठा रहता हूँ. एंड देन एग्जैक्टली. दिस सेम साइकिल विल कीप रिपीटिंग. सो इट इज अ प्रॉब्लम. ओके, हम बहुत ज्यादा डीप आ गए हैं पॉडकास्ट के अंदर. वी रीच 34 minutes, बट वी स्टिल नॉट टॉक्ड अबाउट व्हाट इज अ क्वांटम कंप्यूटर. वो तो समझाओ. So, मतलब क्वांटम कंप्यूटर अपने आप में, I'll take an example. Like on one side we'll take a normal computer and on the other side I'll take a quantum computer. नॉर्मल कंप्यूटर का एकदम बेस पे जाते हैं. We go to the deepest point. तो क्वांटम नॉर्मल कंप्यूटर is either 0 or 1 bit, whether it's राइट. on or it's off. और ट्रू.
But when we go to quantum computers, it can be one, it can be zero, or it can be both. That is the game that quantum plays. You really don't know what's going on. It is हम्म, superposition. ये हमने 11 12th में भी पढ़ा होता है. राइट तो राइट. सुपरपोजिशन प्रिंसिपल होता है. तो इट कैन बी जीरो वन और मे बी बोथ और पता नहीं क्या कुछ तो है. इट हैज अ हम्म. थर्ड डायमेंशन टू इट. दैट इज द रीजन कि कैलकुलेशन स्किल में एक एक्स्ट्रा डायमेंशन मिला है. हम्म. हमारे जो ट्रेडिशनल कंप्यूटर्स हैं उनकी कैलकुलेशन के लिए दो ही डायमेंशन हैं. देयर इज अ मैथमेटिकल एंड फिजिकल लिमिट टू इट. क्यों कितने लेवल तक स्केल कर सकते हैं आप जितने मर्जी कंप्यूटर्स जोड़ दो. देयर इज हम्म. ऑलवेज अ लिमिट टू इट. बट व्हेन वी ऐड दैट थर्ड डायमेंशन वी ब्रेक दैट लिमिट. राइट, आफ्टर बिकॉज बीच में हर एक प्रोबेबिलिटी कंसिडर करता है वो. एग्जैक्टली. तो एंड अनदर फिनोमिना क्वांटम कंप्यूटर में होता है कि जब हम उसे मेजर करेंगे ना इट विल फेल. Can't really measure the exact movement of a qubit. Qubit stands for quantum bit. जैसे क्लासिकल कंप्यूटर के लिए बिट होता है, qubit is for quantum bit. Yeah, that is the very basic of quantum computers. now, if you were to explain it in very basic terms, how would this help with like better calculations? And Mhm. matlab, in this, I want you to talk about ki. I guess there was some discussion when the Willow thing, Willow paper came out. There Mhm. was some scientists discussing how Willow has proven the existence of multiverse. If Yeah, you've yeah, heard yeah, that, yeah. हाँ हाँ. I know. तो एक्चुअली मेरे बड्स की चार्जिंग कम है इसलिए आई एम मूविंग देम अगेन एंड अगेन. बट या तो मतलब मल्टीवर्स वाली थ्योरी पे यू वांट मी टू आंसर दैट मल्टीवर्स वाली चीज राइट. हाँ मतलब या how is it helping with calculations and वेरीफाइंग दैट थ्योरी. correlating? हाँ. ओके चल वी विल कम ऑन टू मल्टीवर्स लेटर. तो कैलकुलेशंस की बात मैंने बताई कि दे हैव एन एक्स्ट्रा डायमेंशन. ठीक है. हम्म. तो अब आई कांट रियली गो इन द टेक्निकलिटीज राइट नाउ. समझ नहीं आएगा लोगों को. बट एग्जांपल से समझाते हैं. लाइक इफ वी हैव टू स्टिमुलेट अ सिंपल थिंग लाइक कॉफी का पार्टिकल. हम्म. इट्स वेरी सिंपल थिंग. वी हैव टू डू अ लॉट ऑफ टेस्ट एंड ट्रायल. ह्यूमन सेल के पार्टिकल्स को स्टिमुलेट करना है. हमारे आज की डेट के जो सुपर कंप्यूटर्स या बेस्ट ऑफ द बेस्ट कंप्यूटर्स हैं दे कांट डू इट. उनके पास वो लेवल की कंप्यूटेशन पावर ही नहीं है कि दे कैन गो इन दैट लेवल ऑफ डेप्थ. बट कमिंग ऑन टू क्वांटम कंप्यूटर्स दे कैन डू इट इन 5 minutes. अगर हम हमारे टेक कंप्यूटर्स पे जाएं इट विल टेक देम मोर देन द टाइम इटर्निटी हैज एग्जिस्टेड. Right. इटर्निटी आज इटर्निटी को आज जितना टाइम हुआ है बने हुए बिग बैंग थ्योरी से लेकर आज तक का जितना टाइम है उतना हम्म. टाइम लग जाएगा जस्ट टू स्टिमुलेट वन पार्टिकल. और उस पार्टिकल का Right. आपका हो गया स्टिमुलेट करने का फायदा क्या है. आई टॉक अबाउट ह्यूमन सेल को स्टिमुलेट करें. लेट्स हम्म. सपोज आई हैव पीकेडी पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज. मेरी किडनी में पथरी हो जाती है बहुत ज्यादा एंड इट इज प्रोन टू फेल. तो हम्म. व्हाट साइंटिस्ट वुड वांट कि यार उस किडनी पे मल्टीपल टेस्ट करते हैं. अलग अलग दवाइयों को चेक करते हैं कि क्या रिस्पॉन्स आता है क्या नहीं आता. बट किडनी तो दो ही है एक बंदे के पास. वो जान तो नहीं हम्म. दे देगा ना अपनी. तो Correct. उसकी किडनी को कंप्यूटर में रेप्लिकेट करते हैं. इन नॉर्मल टर्म्स उसको रेप्लिकेट कर लिया. हम्म. क्वांटम कंप्यूटर कैन डू दैट इन 5 minutes. दैट I इज द see. पावर. अब I जब उसको believe this is called virtual screening बोलते हैं ना इसको. यस. Okay. तो इट इज अनदर रेवोल्यूशन फॉर मेडिकल इंडस्ट्री इन इटसेल्फ. और साइबर सिक्योरिटी में तो है ही. बिकॉज साइबर सिक्योरिटी में अभी हम क्या चलते हैं. अगेन वी गो बैक टू दैट थिंग कि हमारी जो फिजिकल लिमिट है ना कंप्यूटर्स की जो हमें गूगल कराता है कि हैशटैग डाल दो @ डाल दो हाँ हाँ कैपिटल हाँ. कर दो. इट टेक्स यू टू द लिमिट ऑफ दैट पर्टिकुलर क्लासिकल कंप्यूटर. इसकी लिमिट रीच करा दो कि इसको हैक करने में ही 100 साल 200 साल लग गए. तो इट इज नॉट फीजिबल. बट क्वांटम के लिए अगेन दैट इज वेरी सिंपल. वो कुछ सेकंड्स में कर सकता है. Correct. आरएसए एन्क्रिप्शन जिसके ऊपर पूरा साइबर सिक्योरिटी हमारा चल रहा है दैट इज गोइंग टू क्रैश. Correct. हाँ. I've heard this. Got it. So I believe because it can look through multiple possibilities at the same time. एग्जैक्टली. तो अब वो सारी possibilities देख लेगा 256 bit hash की and RSA is gone. आरएसए इज गॉन. are also being आवाज कट हो developed. गया. आवाज कट हो गया बीच में Okay, when just you were answering me. आवाज अच्छी आ रही है. हाँ सही है. Yeah. ओके परफेक्ट. Could you please repeat last line क्या थी? सॉरी भाई. वेट. ओ माय गॉड. मेरा रैम खराब है. सार्थक क्या थी लास्ट लाइन भाई? दिमाग अरे ब्लास्ट हाँ कर गया. आरएसए एनक्रिप्शन उड़ गया पूरा. आरएस. तो हाँ हाँ कैसे हाँ. करेक्ट करेक्ट करेक्ट. हाँ इससे अब लोग कहेंगे यार इससे मल्टीवर्स का क्या रिलेशन है. थिंग इज कि सम साइंटिस्ट बिल्ट अ थ्योरी अराउंड इट कि जो वो थर्ड डायमेंशन है ना जो थर्ड बिट जो थर्ड स्टेट है उसका दैट इज समहाउ प्रूविंग द पॉसिबिलिटी कि वो जो क्वांटम कंप्यूटर है वो मल्टीपल यूनिवर्सेस से लिंक्ड है.
ऐसे एक क्वांटम कंप्यूटर इस यूनिवर्स में है, दूसरा क्वांटम कंप्यूटर दूसरे यूनिवर्स में है, एंड इट Oh, इज डूइंग कैलकुलेशन साइमल्टेनियसली. the दैट इज द may रीजन दैट समझ में आया. Wait, So wait. these quantum computers are apparently, say for instance, connected by some third dimension, whatever, एग्जैक्टली. extra dimensional linked. एंड ये अपने यूनिवर्स की पॉसिबिलिटी कैलकुलेट कर रहा है, एंड सिंस देयर आर इन्फिनिट यूनिवर्सेस, infinite possibilities are being calculated at the same एग्जैक्टली. time. Exactly. This is one possibility, and to be honest, there are enough things to support it. Oh, In theory itself, मतलब practically अभी तक कुछ नहीं, but in what I theory had there's a heard lot was of कि ये stuff. थोड़ा सा shaky है, but हाँ, हाँ. obviously it is quite shaky because हम अपने आप में खुद के ही बेसिक फिजिक्स को चैलेंज कर रहे होंगे उस पॉइंट पे. इफ यू बिलीव टू मच ऑन क्वांटम फिजिक्स, वी आर चैलेंजिंग द टर्मिनल फिजिक्स या जो नॉर्मल फिजिक्स है जिससे हम डे टू डे चल रहे हैं. वी Right. कांट रिलाई टू मच ऑन दिस और टू मच ऑन दिस. में कहीं ना कहीं हमें फिर सुपर पोजिशन में रहना पड़ेगा, या तो इस पे मानो कभी इसको टू Hmm. फाइंड द ऑप्टिमल स्टेट. My thought process around QPUs, QPUs नहीं, sorry, about a quantum computer was a little different. मतलब starting में when I found out about it, मेरे को समझ में आया कि okay, these guys are measuring the, I guess, position of the द qubit. क्यूबिट. राइट. And अब ये position हिलता रहेगा because until and unless it has zero energy, you can't read it. You can't read the राइट. output. So राइट. initially I thought हाँ सही बात है, it can only work on minus 273. But then I guess there was a paper about how if you introduce disturbance, then you can subtract the disturbance and you have the answer. या ऑब्वियसली रिसर्च में वही तो प्लस पॉइंट है कि दैट देयर इज अ लॉट ऑफ रिसर्च गोइंग ऑन क्वांटम. Mm-hmm. वो रिसर्च जो है ना दैट विल प्रोड्यूस अ लॉट ऑफ पॉसिबिलिटीज. एंड आज की डेट में क्वांटम क्वांटम क्यों है, इट हैज नाउ बूम्ड. मतलब इन जर्नल कॉन्वर्जेशन क्वांटम बूम हुए जस्ट बिकॉज अ लॉट ऑफ मनी इज बीइंग स्पेंट ऑन इट्स रिसर्च. ये जो रिसर्चेस होती हैं बिना क्वांटम के इंफ्रा के नहीं हो सकती. टू गेट दैट आउटपुट कि हाँ एक डिस्ट्रैक्शन दूसरी डिस्ट्रैक्शन को कैंसिल करा. इट इज समवट वर्किंग ऑन दैट वाइट नॉइस प्रिंसिपल. जैसे इफ यू हैव एवर यूज्ड इट, जब पढ़ते हैं तो कई बार बोलते हैं अगर ज्यादा शोर है तो यूज वाइट नॉइस. Hmm. हेडफोन्स लगाओ, यू कैन यूज वाइट नॉइस, इट विल कैंसिल आउट द अदर नॉइस. वो एक Correct. सिमिलर चीज है कि इट विल कैंसिल आउट द अदर फ्रीक्वेंसी. प्लस फ्रीक्वेंसी माइनस फ्रीक्वेंसी कैंसल्स आउट. तो Mm-hmm. वही प्रिंसिपल पे इट इज डूइंग समथिंग सिमिलर बिकॉज distractions, noise, vibration is a very big issue in quantum computers. It needs a very stable, very silent environment to work. छोटी सी disturbance and calculation is gone. Hmm. And a lot of money is needed to run that quantum computer क्योंकि आपको बहुत अच्छे साइंटिस्ट चाहिए, Mm-hmm. बहुत हाई फाई रिसोर्सेज चाहिए. क्वांटम का जो अपना कंप्यूटर है ना, उसका जो हार्डवेयर है दैट ऑल्सो डिग्रेड्स वेरी फास्ट. Okay, हार्डवेयर इज let's अनदर say लिमिटेशन. I wanted to start a quantum computing company right now. How much funding would I require to, let's say, hire a lot of scientists, hire a lot of engineers to, have it be done, to, डिपेंड्स ऑन योर स्केल. actually be relevant? डिपेंड्स ऑन योर स्केल कि तुम करना क्या चाहते हो क्वांटम में. आर यू विलिंग टू डू समथिंग इन साइबर सिक्योरिटी? इफ लेट्स टेक साइबर सिक्योरिटी क्योंकि वो रेलेवेंट है Mm-hmm. यहाँ की ऑडियंस से. साइबर सिक्योरिटी का है, यू विल नीड अराउंड वन क्वांटम कंप्यूटर ऑफ अराउंड 5 बिट्स. लेट्स टेक 5 बिट्स. Mm-hmm. सही चीज है, 5 बिट्स विल वर्क. तो यू विल नीड अ बेयर मिनिमम इफ यू आर वेरी एफिशिएंट. जो इंडियंस होते हैं वेरी एफिशिएंट, $15 to $20 million इज द बेयर मिनिमम दैट यू विल रिक्वायर. बट दैट इज यू विल नीड टू बिल्ड द इंफ्रा. मतलब 10 मिलियन के आसपास आपको इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने में लगेगा. another 10 to 15 millions is hiring people because इंडिया में तो मिलेगा ही नहीं बेस्ट. मिलेंगे Mm-hmm. लोग जो क्वांटम में चल रहे हैं, बट to get the best of the best, you will have to hire international talent, and they are paid very much higher because they Correct. are the top 1 percentile of researchers, and it goes on. So around 20 to 25 million is the minimum amount you would need to start something, and there is a lot of startups in this space as well. बहुत सारी companies आ रही हैं ये करने के लिए. इंडिया में कि Not बाहर? in India yet. Mm-hmm. I recently had a word with a person who's building something in India itself. He's building quantum networks. Oh, what is that? Give me a second. So yeah, quantum networks essentially is like the neural networks होते हैं अपने. Okay. It is an algorithm sort of in quantum computers. They're a mix of both quantum and technical traditional computers. It is a mix. It is That's again an something like algorithm that is. middle solution, Acha, right? so it's like an algorithm that is executed on a quantum computer. It is Hmm. it is another thing like आजकल क्लाउड पे भी quantum computers are available if you have heard about it.
You can, yeah, IBM has made it accessible. When Really? certain credits are given for free, if you want to experiment, you can experiment. नाम भूल गया हूँ मैं, but yeah, you can search it up. IBM Cloud Quantum Computer. You will get access to a quantum computer on cloud. That is a mix of traditional and quantum computer. That is the thing I'm most bullish on, because उस case में you can access quantum computer from anywhere in the world. You don't need that expensive infra. Obviously, the credits will be expensive. Everything will be there, but it reduces the cost by a mile. You only need to know Qiskit and basic Circ and the things that are required to run that, but that is another thing. So that is the thing that will make quantum accessible everywhere. That is Right. one thing that I really like about it. A mix of both. I had a theory about something like this. मतलब just like a general thought Sure, आता sure, है ना. no worries. So I want you to either validate or reject something like this. So what I had thought when I discovered कि even quantum computers can like this be made more and more accessible, and I don't know why I had to see that to, make it more obvious. But वो disturbance आया, and then you subtract it, and then you are able to calculate the result. What a genius discovery. Now, what I was thinking is eventually we would make it so much more efficient, like what we did with vacuum tubes. That was the CPU Yeah, basically back then, and now you have a CPU that's this big. yeah. So eventually we could do that with quantum computers, and then in our computer, like we have a CPU and a GPU, we would have a QPU, which would be a quantum processing unit, which you would use maybe, to host a super intelligence on your system. Super intelligence because it can, think of every Yeah. possibility at the same time. Again, यहाँ पे I will like to beg to differ a bit. Reason being क्योंकि that technology won't be that much accessible इतनी जल्दी. It will take a lot of time. जो Hmm. गूगल ने विलो बनाया, that is not exactly the thing that you are pointing to. सुपर Okay. इंटेलिजेंस की बात पे आते हैं, तो सुपर इंटेलिजेंस इज ऑलवेज गोइंग टू बी होस्टेड ऑन क्लाउड द वे चैट जीपीटी इज. Hmm. जैसे आज चैट जीपीटी को यू गिव अ रिक्वेस्ट, एलएलएम जो है, लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स कांट रियली बी ऑन अ फिजिकल कंप्यूटर until unless you have a lot of resources. Correct. SLM is a different thing. Small language models पे आते हैं, तो they are quite efficient, वो सिस्टम पे रन हो सकते हैं. बट ऑब्वियसली AGI या वैसी चीजें जो हैं वो क्लाउड पे ही होस्ट होने वाली हैं. Why would you even need to have a super intelligence on your desktop? That is a thing that I would be thinking कि यार क्या यूज केसेस होंगे उसके हिसाब से क्वांटम की जरूरत पड़ेगी या नहीं पड़ेगी. Hmm. तो दैट इज वन थिंग, बिकॉज रिसोर्सेज ना लोग आज की डेट में एफिशिएंट हो जाएंगे. ऑलरेडी देयर इज अ क्वांटम कंप्यूटर दैट यू एज अ पर्सन कैन बाय. इट इज ऑफ अराउंड $10,000 to $15,000. Wait, शौक wait, शौक के लिए यू कैन बाय. ये तो सब यार मैंने सुना ही नहीं है. ये कहाँ से आ रहा है? So या like, इट इज 2-2.5 साल हो गए इस बात को, मतलब इट इज इन द मार्केट नाउ. but how do you use it? Because इट इज रियली ऑफ नो यूज. oh, Is really of no use. मतलब you can get something, it is like half qubit or something. I don't know the specifications, but it is really useless for a layman. मतलब एक नॉर्मल बंदा क्या करेगा उसका? You really can't do browsing on it. वो इंटरनेट से कनेक्ट नहीं होता. If you want to perform calculations, यार your normal calculator will perform better because so your calculations won't be beating the industry level things. so it's used for what actually? ऐसे ही बस. That thing is useless. That अच्छा, thing is it's useless. just It is it's a showpiece. $10,000 toy. Okay. You can say that. You can find a video of that as well. If you want, I'll share you after the podcast. Okay. That is, yeah. One more thing I want. Okay. एक minute. One more thing I want to understand from you is मैं भूल गया यार. मेरा थोड़ा सा Cool, रैम man. Take खराब your है time. भाई. My bad. Don't. Wait, so हाँ, okay, yes. So one more thing I wanted to understand from you. So Willow release हुआ, and Willow का फोटो मेरे को थोड़ा सा डिसेप्टिव लगा कि Willow looked like a CPU literally. What is Yeah, they that made a first of all? chip. See, Willow is a quantum chip. It's not exactly a quantum computer. Okay, so Willow, like being honest, Willow is a thing that is a stepping stone indeed in the quantum infra. It has given a lot of traction to quantum. आज की डेट में जो लोग क्वांटम के बारे में जानना चाहते हैं, it has peaked because of Willow कि oh, गूगल ने कुछ करा है. hmm. ठीक है, but it is not exactly a quantum computer. It's a quantum chip. It's a different thing.
which is somewhat leveraging the power of quantum computing, but not exactly. It is, you can again say, a mix of traditional and quantum capabilities. It is not exactly a quantum computer. It is a chip that runs on a few principles of quantum computing, but leveraging traditional computing. Okay, so like how is it different? Yeah, so coming on to how it is different, first of all, if we go to the pros, it is like, now that it is a chip, obviously हमारे systems उसको अभी तक नहीं handle कर सकते, but बहुत easily एक chip है तो you can easily access it. It doesn't really need that temperature constraints या disturbance वाले issues बहुत कम हो जाते हैं. Obviously heating वगैरह होगा कुछ, not in the technicalities, but yeah, so it becomes accessible. Research as well. I know Google won't give it for a cheap price. Google ने billions of dollars खर्चे हैं. It will charge a hefty amount for that. But yeah, it is at least more accessible when coming on to that accessibility wala part. But going on to the cons, it is giving a lot of misconception to people. It is a very big misconception कि quantum computer ऐसा दिखता है. हाँ, No, it doesn't exactly. really look like. It doesn't Because really look I've like seen this. वैसा इतना बड़ा कुछ तो टावर रहता है which Exactly. has to be kept on a temperature and it has like Indeed. moving bits and stuff. वही है असली quantum computer. This is not the real quantum stuff. Quantum So- computing is that stuff only जो इतना बड़ा सा quantum computer होता हाँ. है, and वही है असली चीज. So Google ने यहाँ पे marketing करी है, but that is misleading, to be honest. So what I assume is they've put like a quantum like architecture on a IC like you know board or chip. Like being honest, I am not very well aware. मैंने बहुत ज़्यादा research नहीं करी है, but Okay. the best I can tell you, it's a mix of both. Okay. It leverages the things of quantum computing, जो core quantum computing के principles हैं, superposition and all that stuff. It leverages that, and using that, वो third dimension वाला principle is being heavily used in that. That is the reason it is being able to produce such a big calculation that a normal computing would take millions and billions of years to do. I said I think they 5 said minutes. something like 10 septillion years in 5 minutes. Yeah, 10 septillion like, minutes to like I guess तुम लोग guys भी यही सोचते होगे like हमारे पास like 19 के टाइम जो कंप्यूटर्स पहली बार आए थे सिंपल कंप्यूटर्स हमारे तो उस टाइम ये like a similar trend था जैसा अभी आज हम क्वांटम के बारे में डिस्कस कर रहे हैं तो आई गेस आफ्टर like a more like 100 years क्वांटम कंप्यूटिंग के बाद जो नई टेक्नोलॉजी आएगी उसमें भी सिमिलर ही रहेगा. obviously that is what industry and research is. मतलब चीजें आएंगी जाएंगी industries Yes. में नहीं, that goes on. But Right अभी हम now- quantum, हाँ, quantum Right is now- indeed a very big stepping stone. जितना बड़ा revolution in terms of monetary desktops लाए, उतना बड़ा शायद monetary gains में शायद quantum ना हो पाए, because it is not a consumer product. Correct. But on terms of industrial scale, it is a very big thing. Healthcare में it is a thing that can change the whole industrial landscapes. ऐसे drugs जिसके लिए human trials करने पड़ते हैं. If you know what human trials is. Human trials will explain you. एक drug बना है, पहले animals पे check होता है, चूहों पे और जितने भी बंदर हो गए इन सब पे it will be tested and then they'll see what is the output. After FDA says it is safe, then they'll go towards humans slowly and slowly. Humans में भी पहले वो diseased, लोग मरने ही वाले हैं. मतलब कुछ हो भी गया तो दे आर पॉसिबली गोइंग टू डाई, उन पे टेस्ट होता है. देन दे गो टुवर्ड्स हेल्दियर एंड हेल्दियर पीपल. तो उसके बाद एक बहुत कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी होती है. इट टेक्स 15 to 20 years टू रीच टू द इंडस्ट्री. 20 साल लग गए एक ड्रग की डिस्कवरी में. बट वहीं क्वांटम कैन रेप्लिकेट इट. एनिमल ट्रायल्स को तो आप स्किप कर दो, जरूरत ही नहीं है. यू कैन डायरेक्टली टेस्ट ऑन ह्यूमंस. I mean, so that would accelerate By a lot. lifespans also, yeah. Industry growth. Industry Indeed, growth actually lifespan quite acceleration is a bigger thing that will be an outcome of that. But जो drug discovery वाला part है, that is going to boom very fast. Material discovery is also another emerging field in tech and research. Like आज की डेट में synthetic materials बहुत बड़ी market है. जो टोटली केमिकल्स और ह्यूमंस ने बनाया, उसमें नेचर का कोई इन्वॉल्वमेंट ही नहीं था. उनकी डिस्कवरीज में उनके मॉलिक्यूल्स के साथ खेलना, बिकॉज मॉलिक्यूल प्लेज अ वेरी बिग गेम. उसमें भी अगेन नंबर्स की बात आ जाती है. 10 to the power 27, 28 जितने पार्टिकल्स एग्जिस्ट करते हैं नेचर में, उतने पार्टिकल्स के साथ आप खेल रहे हो. So Right. that again requires a lot of computation power. So that is again the play of quantum computers. So material discovery हो गया, cyber security हो गया, health tech हो गया. These are the fields that are going to be, really revolutionized by quantum. I see. ठीक है, let's come back to the topic. Guys, sorry, recording बीच में pause हो गई थी. अब हम बस repeat करने वाले हैं जो हमने बोला था. So Yes, right. basically we were
we had come back to the topic. We were talking about how quantum computing can be adapted in India. What's the roadmap to do that? Okay, so in short, सबसे पहले we have to make students of schools 9 से लेकर 12th में research culture, research awareness, if not proper culture, एक research awareness build करनी है ताकि students अपने आप अपनी niches identify करें. They'll have a edge की what is going on. ठीक है, ये एक हो गया, आपने basic curiosity spark कर दी students में. ठीक है, कमिंग ऑन टू कॉलेज लेवल, इंडिया में कॉलेजेस में कोर्स स्पेसिफिक है ही नहीं क्वांटम के लिए. जैसे ही एआई है, सीएस एआई आ गया, सीएस डेटा साइंस आ गया, वैसे ही वी हैव टू डू समथिंग रिलेटेड फॉर क्वांटम कंप्यूटिंग इटसेल्फ. आज की डेट में कोई स्पेसिफिक गवर्नमेंट ग्रांट्स अवेलेबल नहीं है. द गवर्नमेंट शुड आल्सो रियली फोकस ऑन ग्रांट्स फॉर क्वांटम कंप्यूटिंग रिसर्च. ऑब्वियसली एक बहुत बड़ा पूल है, लाइक मे बी शायद $1 billion. आई एम नॉट 100% श्योर अबाउट दिस पॉइंट. शायद गवर्नमेंट ने इस साल $1 billion डिवोट करा है टू क्वांटम रिसर्च. I guess it's $1 billion or 1,000 crores. तो भी है, बहुत बड़ा अमाउंट है. So government contribute करे, but that is not directly a grant. It is more or less कि government वो infra पे spend करेगी. Private colleges, government colleges में will help in opening that quantum labs. But they have to, try to help and push it a little. Government jobs को maybe try to produce some government jobs in research specific sectors, because गवर्नमेंट को भी पर्सनली फोकस लग रहा है कि दे मिस्ड आउट क्वांटम. दे शुड हैव फोकस्ड 20-30 years बैक ऑन क्वांटम, जब यूएस चाइना सब कर रहे थे. He is far behind in that race. Now India wants to catch up, so they'll have to do a lot of research on the government side itself. So a lot of government jobs will be there. तो for a youth वहाँ पे jobs तो आज भी दिख रही हैं. I personally, अगर मेरा business ना होता, I would have gone for quantum computing research, most probably in an international university to do a PhD or something. बट मेरा तो केस ही अलग है, अलग ही निकल गए. तो बट कमिंग ऑन टू आइडियल केस, तो वो बच्चा, उसके पास बैचलर्स लेवल पे कुछ है ही नहीं. या तो वो अप्लाइड फिजिक्स के लिए जाएगा, उसमें अप्लाइड फिजिक्स में क्लासिकल ज़्यादा पढ़ाएंगे बिकॉज दैट इज मोर वेल रिसर्च. तो हमें हमारी क्लासिकल फिजिक्स के प्रपोर्शन को थोड़ा सा बैलेंस करना पड़ेगा, क्वांटम फिजिक्स को और इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा, मास्टर्स लेवल पे और कोर्सेज लाने पड़ेंगे और अवेयरनेस बढ़ानी पड़ेगी लोगों में, और इंडस्ट्री अडेप्शन लानी पड़ेंगी. इंडिया में कंपनीज बिल्ड करनी पड़ेंगी जो क्वांटम कंप्यूटिंग पे फोकस करती हैं. इसी के अराउंड जब डिमांड बढ़ेगी क्वांटम कंप्यूटिंग की, वर्कफोर्स की और टेक की डिमांड बढ़ेगी, तो अपने आप सप्लाई चेन विल समहाउ फिल अप टू दैट लेवल एंड मीट. चाहे उसके लिए फिर न्यूटन जैसे स्टार्टअप्स जो हैं क्वांटम कंप्यूटिंग के लिए ही अपने आप स्कूल्स खोलें. नॉट एग्जैक्टली न्यूटन, आई एम जस्ट गिविंग एग्जांपल, जैसे उन्होंने टेक के लिए करा, वैसे कोई और स्टार्टअप आता है एंड दे आर प्रोड्यूसिंग स्टूडेंट्स फॉर क्वांटम, so on. तो ऐसे complete ecosystem बनाना पड़ेगा, and it is not a thing that can be done in 3, 4 or 5 years. It is a thing that will take a decade or even 2. Right. तो जैसे step 1 है, let's say this step 1 is done, right? Via, of course, we discussed like companies like Scalar and companies like Step 1 was awareness at school levels. हाँ. Step 1 was awareness. तो वो स्केलर नहीं करता, दैट इज अ डिफरेंट थिंग. स्केलर तो सिर्फ कोडिंग सिखा रहा है. अच्छा, राइट ना. स्केलर एंड लेकिन न्यूटन, what happens, फोकस्ड ऑन कोडिंग. दे आर मोस्टली आर फोकस्ड ऑन कोडिंग इटसेल्फ, प्योरली कोडिंग कल्चर. I believe the fact that things like Scalar and Newton exist, I think there will be more companies that come up in edtech that are genuinely willing to just teach people about a subject rather than कि हमको तो एक एवरेज NIRF की रैंकिंग चाहिए, एंड दैट इज वाई हम लोग क्या करते हैं, पॉइंटिंग आउट टू अ सर्टेन कॉलेज राइट नाउ, इज हम लोग कॉलेज में बच्चों को एक साथ बिठाते हैं जब NIRF का फीडबैक फॉर्म आता है और खुद भरवाते हैं फीडबैक फॉर्म, एंड सर्टेन कॉलेजेस डू दैट. सो now there are more and more institutions that are willing to just say कि भाई तुम पढ़ने आ रहे हो, हम फीस क्रेजी लेते हैं 10 लाख 11 लाख, बट we are actually 25 लाख 25 लाख, बट we are genuinely teaching you something. ठीक है. और टेक में तो भाई, टेक में तो जाने दो, टेक में तो प्रॉब्लम है, बट टेक का प्रॉब्लम is still being tackled. काइंड ऑफ हो रहा है, थोड़ा सा इग्नोर भी कर सकते हो. बट ब्रो, what I've seen in this thing, finance, it is just, oh my god. क्योंकि finance में what I realized was almost no one that goes into finance is actually passionate about finance. Tech में तो चलो
30-40% लोग मिल जाएंगे, विच इज अ लो नंबर बट इट इज ठीक है। फाइनेंस में सिर्फ 5% लोग, दिस इज अनदर डेटा पॉइंट, कहीं तो मैंने पढ़ा था कि हाँ 2 से 5% की रेंज में लोग होते हैं हु आर इंथुजियास्टिक अबाउट फाइनेंस फॉर द फर्स्ट 5 to 10 years ऑफ देयर करियर। उसके बाद उनका भी खत्म हो जाता है कि हो गया भाई, ले जाओ। बिकॉज फाइनेंस में इनोवेशन नहीं आ रही उस स्पीड से जिस स्पीड में टेक में आ रही है। फिनटेक का भी अगर हम सेक्टर देखें, फिनटेक में भी इनोवेशन बहुत धीरे आ रही है। लाइक द बिगेस्ट फिनटेक इनोवेशन वी सॉ वाज यूपीआई। correct, exactly, and people are going crazy about that, but it's a good technology, but it's not like कि कटिंग एज। हाँ बेस्ट इन द वर्ल्ड बोलने के लिए। एंड द थिंग इज कि दिस इज नॉट ओनली अ थिंग इन इंडिया, यूपीआई से बेटर टेक्नोलॉजी और कहीं नहीं है ऑलमोस्ट। तो इट्स लाइक व्हाट इज एवरीवन डूइंग। फाइनेंस में इंथुजियाज्म और इनोवेशन की कमी है, इस वजह से देयर इज अ लॉट दैट कैन बी डन इन फिनटेक इटसेल्फ। आई वाज टॉकिंग टू वन ऑफ द फाउंडर्स ऑफ बिग फिनटेक कंपनी एंड ही टोल्ड मी दैट देयर इज अ लॉट दैट नीड्स टू बी डन इन फिनटेक। बट फाइनेंस में लोग रिस्क लेने से बहुत ज्यादा डरते हैं क्योंकि इट इज कोरली अबाउट मनी, राइट इन्वेस्टमेंट के राइट। बारे में नहीं है। यू आर ऑल्सो डीलिंग विद समवन एल्सेज मनी, तुम किसी और के पैसे के साथ डील कर रहे हो। स्मॉल मिस्टेक, स्मॉल कैलकुलेशन मिस्टेक एज वेल एंड योर कंपनी इज डूम्ड। तुमने 100 करोड़ का 1 कॉमा एक्स्ट्रा लगाया, पता नहीं क्या का क्या होगा। राइट राइट। तो पीपल आर वेरी स्केयर्ड टू प्ले ओवर देयर। एंड अनदर थिंग, क्वांटम का एप्लीकेशन अगर हम फाइनेंस में बात करें, जो कि पिछली रिकॉर्डिंग में हम कर रहे थे, बट सही। अरे तो भाई। आज के डेट में देयर आर लॉट ऑफ HFTs। You know what an HFT is? High frequency traders. ओके। Yeah. So what HFTs are? अगर मैं HFT के बारे में 2 लाइन बताऊं तो HFT essentially are coders who are a little enthusiastic about maths and finance. वो क्या करते हैं, वो एल्गोरिदम्स बनाते हैं जो ह्यूमंस की जगह ट्रेड कर रही होती है मार्केट पे राइट राइट राइट, एल्गो माइक्रो ट्रेडिंग। सेकंड्स में। या एल्गो ट्रेडिंग उसी का और एडवांस वर्जन होता है HFT, जो अच्छा multi-billion-dollar कंपनीज। अच्छा, और होता एल्गो है, ओके ट्रेडिंग इज अ टेक्निक, HFT is a person who does algo trading. ओके। ठीक है। तो जितने भी बड़ी जेन स्ट्रीट हो गई और जितने भी बड़े बड़े ये सब फंड हाउस होते हैं, दे डू दैट। सो दे पे अ शिट टन ऑफ मनी टू HFTs, उनकी करोड़ों में सैलरीज होती हैं एंड अ लॉट ऑफ स्ट्रेस एज वेल। बट द थिंग इज कि अगेन देयर इज अ लिमिटेशन इन फिजिकल कंप्यूटर्स कि कितने नंबर्स के साथ आप डील कर सकते हो। करेक्ट, हाँ। इज अ फिजिकल लिमिटेशन। बट क्वांटम के केस में आई डोंट नो द एग्जैक्ट लिमिटेशन, बट इट इज फार 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 बियॉन्ड ऑफ व्हाट वी वांट एज ऑफ नाउ। करेक्ट। Finance, you can build a AI plus quantum mix of an algorithm that can really, boom and burst in the market. You can be a very good person. Now, obviously, you'll need a lot of money and resources. Keeping that side apart, उसके बारे में भी हमने बात करेगी, आगे बताऊंगा. But you can really do a lot in finance sector with quantum itself. Quantum algorithms can be best in class quantum traders in what I understand about quantum. They can really revolutionize the finance industry in itself because it is all about numbers. Whether it be alpha, beta, gamma, these are all things of trading itself. तो आप कितने लॉसेस झेल सकते हो, कितना आपका रिस्क फैक्टर है, कितना पी रेशियो है, बहुत सारे डेटा पॉइंट्स के साथ आपको खेलना है। राइट। क्वांटम कैन डू दैट वेरी गुड इफ इट रियली वर्क्स आउट। सो मतलब जिस्ट ऑफ इट इज कि थोड़ा सा बाजू में आ गए, बट कि प्रॉब्लम इज बीइंग सॉल्व्ड, ठीक है। एजुकेशन वाला जो प्रॉब्लम है दैट इज बीइंग सॉल्व्ड, मल्टीपल प्रॉब्लम्स आर बीइंग सॉल्व्ड, बट क्वांटम कंप्यूटिंग में इवेंचुअली देयर विल बी सम कंपनी इफ Quantum supremacy is attained. Quantum supremacy, if attained, there will be a lot of company. Quantum supremacy, अब I am able to recall. Quantum supremacy का exact definition होता है कि quantum computer are being able to perform classical computers से better in a certain set of tasks. ओके। They are able to beat, but आज तक it has not been able to be done. चाहे आपका 1000 क्यूबिट का क्वांटम कंप्यूटर हो, चाहे 100 क्यूबिट का हो, it has never outperformed a classical computer till date. बिकॉज ऑफ It द has to be फिजिकल purely लिमिटेशंस। physical limitations like temperature, disturbance, and whatsoever. वो सारी चीजें is a very big issue. So in very specific calculations, I believe it can do that. Indeed. Right. So that phenomena will be known as quantum supremacy. अभी तक वो achieve नहीं हुई है. Okay. Let's say now step one solved. Step two. Now what do? I Step two. have people that are now excited about the sciences.
And about quantum computing, now what? Now what? Now it depends on you whether you want to do a job, whether you want to build a company out of it, whether you want to do other things like start fund house around it. It's again in a company sort of. मतलब obviously two major options कि आपको job करनी है, company बनानी है. दोनों के लिए endless opportunities. Because if you're quantum physicist, worst case scenario, quantum computing की jobs ही exist नहीं करती. You're a very good physicist. You're a person who's crazy in maths. Linear algebra आपकी बहुत सब बढ़िया है. तो you can always be a very good physicist. Physics के वाले जो रोल हैं उसके लिए तो आप always are a very ideal customer, a very Right. ideal employee. And coming on to the company setting side कि quantum computing related क्या companies बन सकती हैं. अब there is a lot of again possibilities in that part. Startups में बहुत पैसा, deep tech एक ऐसा sector है जिसमें investors really want to dump their money, पैसा उठा के फेंकते हैं वहां पे कि ले जाओ कुछ करके दिखाओ. बिकॉज AI was deep tech. उन्होंने देखा है कि अगर आप एक बड़े डीप टेक सेक्टर में पैसा डाल रहे हो, इट गिव्स अ ह्यूमंगस अमाउंट ऑफ मनी बैक. रिटर्न्स आर ह्यूमंगस. AI में जिसने AI को 2012-13 में आइडेंटिफाई किया था, सोचो सैम ऑल्टमैन वाज वर्किंग इन 2016-2017 में AI. तो जब सैम ऑल्टमैन पहली बार गया 2016 में कि मेरे को AI के लिए AI बनानी है, उसके लिए पैसे दे दो, उसको पता होगा कि AI का क्या पोटेंशियल है. आज he has made I don't know what percentage of returns, कितने 1000x 10,000x क्या रिटर्न बनाई है. 7% of OpenAI. Getting my point. Yeah. वो डीप टेक एक ऐसे सेक्टर है. क्वांटम इज अगेन द नेक्स्ट थिंग. Semiconductors was the second thing, and I see quantum to be the next big thing in the market. I see. But again, I don't think so will be that commercially utilized in a way that AI is being utilized. वो front end वाली चीज ने, that is a thing of back end. AI plus quantum, very well possible. Only solely quantum via cloud, quite possible. But quantum computers घर में, not that possible. At a certain level, I guess you are more educated about this, but from my perspective, I feel like that will be a thing. मतलब maybe not in the next 10 years, but at some point, Yeah, obviously 30-40 years down the line it is a हाँ, different thing, but really as of now we really don't see a lot of use cases. अगर मैं उसे कर भी दूं, पहली बात कंपनी जब या एक ऑर्गेनाइजेशन भी पैसे खर्चती है तो थिंक कि भाई उसका आउटपुट क्या होगा, क्या मैं उसे सही में वो यूज कर पाऊंगा. मैंने वो आउटपुट तो निकाल दिया, मैंने उसे right. इतना ऑप्टिमाइज कर दिया कि आप घर में रख लोगे, बट व्हाट इज द यूज? घर में रख के करोगे क्या? ऑलरेडी देयर इज अ, मैंने बताया कि एक छोटा सा खिलौना है अराउंड दैट ऑफ $10,000-$15,000. Right. तो क्या उसका? Again, हाँ, you will have to mix things. A mixture of classical plus quantum is a very good thing that can play a lot of things. And maybe right. 10 to 15 years may we might see something, maybe even earlier, before 10 years as well. But What let's see I'm what it takes. thinking is, I believe AI comes into this discussion a lot because, of course, it's become very much better at research and quantum computing at some point will help AI itself. But what I believe is, at least for scientific, mathematical, and intelligence fields, intelligence by that I mean data fields, uh, we are right now experiencing the very start of an inflection point, and people are still going crazy कि oh my god, मतलब even I'm going crazy कि O3 कितना बढ़िया निकला कि 71%, but I think it's going to happen even faster because what I Obviously, think is learning curve वाला हिसाब आएगा. Things boom after a point. Exponential boom आता है हर booming technology में. वो चीज क्वांटम में भी आएगा. एंड क्वांटम में बीइंग ऑनेस्ट ऑलरेडी एआई के साथ इंटरसेक्शन हो चुका है. QML इज अ वेरी इमर्जिंग फील्ड इन क्वांटम, जिसके बारे में अभी तक हमने बात नहीं करी. क्वांटम मशीन लर्निंग, सो डायरेक्टली एआई में एप्लीकेशंस अभी कम है, बट मशीन लर्निंग लेवल पे इट इज अ पार्ट ऑफ एआई इन इटसेल्फ. मिक्स right, चलते right. हैं दोनों. मशीन लर्निंग के लेवल पे, बिकॉज मशीन लर्निंग अगेन इज अबाउट डेटा. कितने एफिशिएंटली आप मशीन को डेटा के साथ इंट्रोड्यूस करा के लर्न कराते हो. Right. That is a thing that quantum is outperforming in classical computers, not by like quantum supremacy level पे नहीं, but on a smaller scale they are doing better. And with a mixture of both, कि मतलब traditional plus quantum, then machine learning, a lot of good things are being done over there. And it is a really good niche also that new fellow researchers can focus on. Like आप college में हो,
You don't nearly do a lot of things. आप कुछ I'll tell you a resource to learn quantum itself. QWorld. Hmm. Free, open source, doesn't charge you a bit of money for any certifications they provide. Learn from them, very good quality of courses and everything. Okay, Base से लेकर on that thought, we've already talked about this, but this has to be there. okay. On that same thought, how do I go from zero quantum computing knowledge to be a researcher at IBM? What's the roadmap? Okay. Okay, great. So first of all, ideal case scenario. कल खत्म हुई नंबर सही है आईआईटी दिया आइजर में गए या आईएससी में गए किसी अच्छे रिसर्च इंस्टीट्यूशन में गए बैचलर्स करी तुमने या तो फिजिक्स में या फिर कोडिंग वगैरह में अच्छी इंस्टीट्यूशन से माइंड दैट वैल्यू होती है रिसर्च में Hmm. तो अच्छे इंस्टीट्यूशन से करा नाउ यू हैव होल्ड ओवर फिजिक्स एंड सम कोडिंग लैंग्वेजेस फिजिक्स इज इंपॉर्टेंट एंड Hmm. मैथ्स फिजिक्स मैथ्स एंड अ फ्यू कोडिंग लैंग्वेजेस कोडिंग में जावास्क्रिप्ट या बहुत हाई फाई नहीं जाना डन बेसिक पाइथन एंड अ फ्यू आसपास की चीजें यू आर डन विद दैट नाउ इट्स अप टू यू हाउ डू यू गो अगर तुम मास्टर्स करते हो देन मास्टर्स के लिए फॉर श्योर गो विद फिजिक्स ओनली Hmm. मास्टर्स कंप्यूटर्स में मत करना मास्टर्स के लिए इट्स प्रेफरेबल दैट यू गो टूवर्ड्स क्या नाम है अपना क्वांटम फिजिक्स की अगर तुम्हें मास्टर्स मिल जाती है इफ यू आर एबल टू गो अब्रॉड बेस्ट थिंग दैट यू कैन डू इफ यू वांट टू बिल्ड अ करियर इन क्वांटम कंप्यूटिंग बेस्ट थिंग दैट यू कैन गो आउटसाइड डू कोर्सेज स्पेसिफिक टू क्यूसी क्यूसी इज व्हाट वी से जनरली क्वांटम कंप्यूटिंग की जगह बड़े वर्ड की जगह तो Hmm. क्यूसी के केस में बहुत सारी नीशेस होती हैं क्वांटम अपने आप में इफ यू आर फोकस मोर ऑन हार्डवेयर हार्डवेयर स्पेसिफिक कोर्सेज कर लो मटेरियल साइंसेज में घुस जाओ इफ यू आर फोकस मोर ऑन सॉफ्टवेयर साइड देन यू कैन थिंक कि हाँ भाई मैं कोडिंग ही साइड रहना पसंद करूंगा इफ यू वांट टू बी इन समवेयर बिटवीन तो फिजिक्स इज द वे आउट Right. फिजिक्स में मास्टर्स करो एंड अलॉन्ग विद दैट देयर आर लॉट ऑफ ऑनलाइन रिसोर्सेज फ्री हैं दैट Hmm. आर चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन क्यू वर्ल्ड वो तुम्हें बढ़िया से बढ़िया चीजें देंगे कीप फॉलोइंग देम दे विल इंट्रोड्यूस यू टू अ लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज इंटर्नशिप्स एंड अ लॉट ऑफ स्टफ Hmm. ओपन अभी सोर्स फ्री मैं ऑर्गेनाइजेशन इज अ वेरी गुड रिसोर्स मैं एक्चुअली नोट डाउन कर लेता हूँ. I didn't know anything like this existed. So क्यू okay. वर्ल्ड इज अ वेरी गुड रिसोर्स वो फ्री में उनके हर कंट्री में एक क्यू वर्ल्ड बनाते हैं लाइक क्यू इंडिया है क्यू पाकिस्तान भी है Oh. लाइक हर कंट्री में जाके दे फाइंड द बेस्ट ऑफ द बेस्ट क्वांटम गाइज उनको एक Hmm. चैरिटेबल चीज के लिए बोलते हैं कि हाँ लेट्स एजुकेट पीपल अबाउट क्वांटम कंप्यूटिंग एंड दे डू रियली गुड एट इट वहां पे अपना नेटवर्क बनाओ नेटवर्किंग इज वेरी इंपॉर्टेंट इन क्वांटम कंप्यूटिंग आई विल रिकमेंड यू वन बुक इफ यू वांट टू स्टार्ट इफ यू वांट टू चेक वेदर क्वांटम इज फॉर यू और नॉट डांसिंग विद क्यूबिट्स बाय रॉबर्ट सर्टर is the book Dance. that I Okay. read. Dancing Okay. with Qubits. Dancing The with big book, cubits. Okay. but दो तीन चैप्टर चार चैप्टर पढ़ने के बाद you will realize whether you can finish the book or not. Okay. Well, I can तब never अगर finish a इंटर book. मेरे पास मैंने पहली बार लाइफ में एक दिन पहले अपनी पहली बुक खत्म करी. I also didn't oh, finish that book. oh damn. And अभी quantum computing की एक famous line है. Let's end this episode by that. okay. कि if you think you understand quantum mechanics, you don't understand quantum mechanics. Richard Feynman. Well, that The is more you think, the more you yeah. think you know quantum mechanics, the less you know quantum mechanics. ठीक है. यहाँ पे end करते हैं. We've had But a lot of footage. Could have had more, but unfortunate. गलत हो गया आज थोड़ा. सार्थक, anything you got? I hope सबको पसंद आया होगा. We want to continue it, so आप जो भी आपका लाइक फीडबैक को ड्रॉप करना एंड अगर पसंद आया होगा आपको तो हम एक और इसका पार्ट 2 करेंगे लाइक यू कैन गो मोर इनटू क्वांटम कंप्यूटिंग और लाइक एनी अदर रिसर्च टॉपिक बिकॉज़ लाइक सार्थक एंड हिज टीम आर द टॉप रिसर्चर्स आई हैव एवर मेट so like yes I can bring more people like Sarthak for you and yes so want to talk about this let's suppose you are a student you want to get into research or are you already into research so what you can do you can like have our yearly subscription so where we provide like the top researches to you like which we are talking about like we are bridging the research gap to the 90 days so that part so if you are like a college student you can connect with me or like Sarthak on LinkedIn and we can help you out regarding that and if you are let's suppose a college professor and you want to introduce this to your college you can connect regarding that also. We are doing B2B partnerships in India right now, and recently partnered with like one US university, and we are already working with some US institutions. So we are now like more doing partnerships in India also. So if you are interested for the college partnership also, you can connect us. Otherwise, for your personal usage for research, you can connect that there also. So that was the thing I want to say. तो guys, we have a lot to talk about.
unfortunately, we've run out of time. There's a lot of topics. Maybe we will have Sarthak also talk about AI research, which you guys might be more interested in. So that's it for today. Nice having you guys. Thanks. Okay. Bye.